Your mic is not working! Mine was not working. Whoa! What a dhamakedar performance! Give it up for our experts, Niti Mohan and Shankar Mahadevan ji. In fact, now he is Padma Shri Shankar Mahadevan ji. और एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे सिंगर्स के लिए. बहुत ही जबरदस्त गाया यार आप लोगों ने. ऑडियंस मजा आया आप लोगों को? और भाई लोग आप लोग जो फ्री में आए, आप लोगों को मजा आया? एंजॉय किया आपने? तो थोड़ा चिल्लाइए ना फिर. बोले ये! बहुत ही धमाकेदार फ्लैश मॉब था. पहली बार मैंने ऐसा एक अमेजिंग सिंगिंग फ्लैश मॉब देखा है. क्या बोलते हैं मीडिया वालों? मजा आया? बहुत बहुत धन्यवाद इस फ्लैश मॉब का हिस्सा बनने के लिए और साथ में भाग लेने के लिए. This is truly the best way to give you all a glimpse of how exciting, promising and entertaining Rising Star 3 will be. इंडिया के हर कोने से चुने हैं हमने अनोखे सिंगर्स जो हर सैटरडे संडे यानी शनिवार और रविवार 16 मार्च से दिखाएंगे अपने आवाज का कमाल. बट ये तो बस ट्रेलर था. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों. I would now let our very talented judges take over the stage. Let's hear it for them. Huge round of applause. Okay, I request Niti to एक छोटा सा सोलो कुछ हो जाए निधि. Do you want Niti to sing a song for you? अब मेरा माइक ऑन है. थैंक यू शंकर जी, थैंक यू. ये पहली बार है कि मैं राइजिंग स्टार फैमिली का हिस्सा बन रही हूँ, एक लाइव रियलिटी शो का हिस्सा बन रही हूँ. सो जुनून पूरा है और जोश पूरा है, म्यूजिक से भरपूर है ये माहौल. सो सर ऑडियंस मजा आया कि नहीं? अच्छा कुछ साथ में गाएं हम लोग. सर थोड़ी सी गूड़ियाँ कर लेते हैं. गल्लास द गुड़ियास. अच्छा हमको एक कोरस सेक्शन चाहिए तो जो हमारे सब सिंगर्स है सब लोग आ जाओ. ऑल द सिंगर्स कम ऑन जॉइन अस. और आप लोग भी सब कोरस है हमारे साथ, आज साथ में गाएंगे. सब शर्मा रहे हैं, फोन लेके चालू है. बिग हाय. हमारे बीच यहाँ बहुत बहुत बड़े लोग आए हुए हैं. मनीषा है फ्रॉम कलर्स. वी हैव शीतल, वी हैव विपुल, वी हैव निकुल. Everybody is here. क्या बात है यार. तालियां और भी जोरदार होनी चाहिए. Yes! What an amazing performance by our experts and by our singers. कितना अच्छा गाया आप लोगों ने. और बस यही हमारा शो है. जैसे हम यहाँ पे गा रहे हैं वहाँ पे भी लाइव गाएंगे. मजा आएगा. And now, before we go ahead, I would like to call on stage the Karta Dhartas of the show. Please welcome Nina Elavia, Jaipuria, Head, Hindi Mass Entertainment and Kids TV Network, and Vipul D. Shah, Founding Chairman and MD, Optimistics Entertainment India Private Limited. नीना मैम वेलकम. और आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक एक सवाल पूछूंगा. नीना मैम, द वीकेंड 9 PM slot has been extremely successful for Colors. पिछला शो हमारा ही था जो नंबर 1 शो था. बहुत मज़ा आया. People have given it so much love. So Rising Star is coming up this weekend. What are your thoughts for this season? So thank you very much. A very warm welcome to everybody from the Colors family. The weekend has always been a very important slot for Colors in the past, and from Big Boss to Khatron Ke Khiladi, which by the way was our best season so far. The audiences really appreciated it. It really rocketed in terms of ratings, and of course now there is a equal amount of pressure now on Rising Star to ensure that we get a whole lot of audiences, and I'm sure with a glimpse of what you saw today, it is going to be no less. But Rising Star, I must say, we are very proud to present as a group that comes together to make this show, because Colors is the one that pioneered a live general entertainment show. It is the only general entertainment show that actually is live as we speak. So there are absolutely no retakes, no errors, no scope for anything to go wrong at all. There's an absolute adrenaline rush on the sets. And I think what is most important is जनता का प्यार. जनता का प्यार ही उठाती है वो दीवार, और जनता ही वो बनाते हैं टैलेंट, जनता को बनाते हैं वो सक्सेस,
जनता को बनाते हैं वो फेलियर. So it is up to the janta. It is the most interactive show as well because it is live voting. You have to check in. आपकी voting की वजह से ही दीवार उठेगी. And I think that is the most important part about the show. Open invitation. Please come to the sets and be with us and see the show. But really looking forward to Rising Stars Season 3 starting on Saturday, Sunday, 9 p.m. Only of course on Colors. Thank you so much, ma'am. शंकर सर, आप तीनों सीजन्स कर चुके हैं राइजिंग स्टार के और हम सबको पता है इट्स बीन अ सुपर सक्सेसफुल शो. द लास्ट 2 सीजन्स हैव डन रियली वेल और बहुत ही अच्छा टैलेंट हमको देखने को मिला है. आपकी इस सीजन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे सिंगर्स से? ये तीसरा सीजन है एंड यू नो आई कांट टेल यू कि कितना एक्साइटमेंट है. एक्चुअली हम लोग तो चाह रहे थे कि जनवरी में शुरू हो, लेकिन 2 महीने वेट करते करते मैं बहुत इम्पेशेंट हो गया. फाइनली ये शुरू हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो जो ये शो का जो टीम है, दैट इज कलर्स टीम एंड द ऑप्टिमिस्टिक्स टीम, व्हेन दे वर्क टुगेदर इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस दैट आई हैव एवर सीन. बिकॉज मैं कम से कम 20-22 साल से मैं रियलिटी शोज़ के मतलब मैं जजेस एज अ जज आई हैव बीन कमिंग, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ और मैं हर शो में जाके ऐसे नहीं बोलता हूँ, सचमुच दिल से बोल रहा हूँ मैं. ये इसके लिए कि ये जो शो है ये जब शुरू होता है रात को 9 बजे जब शुरू होता है, इट्स लाइक वॉचिंग अ 1.5 hour स्पोर्ट्स गेम. दैट इज द एड्रेनलिन रश. शुरू होता है एंड यू आर एट द एज ऑफ योर सीट और ख़त्म हो जाता है इन 1.5 hours. द शो इज ओवर एंड एवरीथिंग इज लाइव. जैसे नीना वाज सेइंग, इट इज नॉट इवन 1 second का भी डिफर्ड नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली लाइव. जो टैलेंट उसके बारे में क्या कहना. लास्ट 2 सीजन से हमारे पास ऐसे कमाल के टैलेंट हैं और कम से कम ये जो टैलेंट है उसमें से कम मैंने 7 या 8 सिंगर्स को मेरे फिल्मों में मैंने गवाया है. सो दैट इज इनक्रेडिबल टैलेंट. लास्ट फिल्म भी जो सुरमा आए थे उसमें से कम 4 सिंगर्स हमारे लास्ट सीजन के उस फिल्म में ही गाए. अख्तर ब्रदर्स और बहुत सारे अपने हेमंत ब्रिजवासी, उन्होंने सब गाया. ही वर द विनर्स. नॉट ओनली द विनर्स, अच्छे सिंगर्स सबको दे गेट एन अपॉर्चुनिटी. दिस सीजन जो मैं टैलेंट देख रहा हूँ, आई थिंक जो हम लोगों ने लास्ट सीजन में जहाँ पर एक सुर छोड़ा था वो सुर यहाँ ये सीजन से वो सुर से शुरू हो रहा है. सो इट्स गोना बी इनक्रेडिबल. We are all looking forward to it, and this year is really special. Unfortunately, today we don't have Diljit because he's got some prior commitment. But we have, I would like you to welcome with a loud round of applause the 3rd new judge for the first time. She's coming on this Rising Star platform, Neeti Mohan, the extremely talented Neeti Mohan. जोरदार, इससे भी बड़ा welcome चाहिए हमको. And really the energy is so positive. Aditya Narayan is there with us. He is also a fabulous artist. Not only he's a absolutely fabulous anchor, but he's also a fabulous singer, performer, dancer, and also Khatron Ke Khiladi. Yeah. So we have him with us. So I think Adi, aren't we going to rock this show, Neeti? What do you think? Absolutely, sir. Yeah, we're looking forward to this. Yeah. नीति, शंकर सर ने आपका इंट्रोडक्शन कर ही दिया है. पहली बार आप राइजिंग स्टार का हिस्सा बनी है. इट्स द फर्स्ट टाइम यू जॉइनिंग द पैनल एंड इट्स द फर्स्ट टाइम यू डूइंग अ लाइव सिंगिंग रियलिटी शो. आप क्या कहना चाहेंगी, एंड स्पेशली अबाउट आवर को एक्सपर्ट्स शंकर सर एंड दिलजीत पाजी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि फर्स्ट थिंग जब मैं शंकर जी को मिली, जब हम खतरों के खिलाड़ी के लिए शूट कर रहे थे, तो फर्स्ट थिंग ही सेड, नीति तुम्हें इतना मज़ा आएगा क्योंकि ये जो टीम है कलर्स और ऑप्टिमिस्टिक्स की, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीपल यू विल गेट टू वर्क विद. एंड आपने भी अभी फिर से ये बोला है, तो आई रियली फील इट already, the way the entire team has scouted for the talent और जिस तरह से उनकी तैयारी की जा रही है और जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट करने का तरीका जो है लाइव में, कि कैसे ऑडियंस तक एक लाइव शो को पहुंचाया जाए इन रॉएस्ट फॉर्म पॉसिबल. आई थिंक आई एम really blessed to be working with a team like this and honored to be standing next to Shankar ji, Padma Shri Shankar ji and Diljit ji, working with them for the first time. ये एक फैमिली ऑलरेडी बहुत प्यारी फैमिली बन चुकी है और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं टू शोकेस हमारे जो इतने प्यारे सिंगर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री.
सो सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट एंड सुपर एक्साइटेड कि वो लाइव परफॉर्म करेंगे और हम सब आपके सामने लाइव होंगे और हम सब चाहेंगे कि वूट ऐप आप डाउनलोड करें और हमारे साथ रहें इस शो में, हमारी फैमिली का हिस्सा बने. सो थैंक यू. थैंक यू नीति. बिल्कुल सर, सबसे पहले तो कूडोज टू द एंटायर टीम फॉर ब्रिंगिंग द लाइव फॉर्मेट टू इंडिया. और ये सवाल एक्चुअली मैं भी जानना चाहता हूँ कि सर ये मैकेनिज्म फंक्शन कैसे करता है और हाउ इज द एक्सपीरियंस बीन सो फार? आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है. ये इजराइल के फॉर्मेट है. यहाँ जो What an amazing performance. आवाज तो करो पब्लिक, क्या ठंडी बढ़ गई क्या? एक नंबर. और एक बार अब जोरदार तालियां हो जाए डीजे चेतस के लिए. लेट्स हियर इट फॉर हिम. Thank you, Nezi. Your performance has truly entertained each one of us. And DJ Chetas and Nezi are truly the talent that have got Janta ka pyar, and which is why they've become superstars. I would like to request Nezi and DJ Chetas to tell us about their journey. Yeah, I think it's always been tough in life and in the journey. लेकिन जनता ने जो प्यार दिया है, असल में उससे ही हम बने हैं. मतलब मेरा तो पूरा इन एंड आउट जनता पे डिपेंड करता है कि मुझे अपने करियर के शुरुआत से जो सपोर्ट मिला है और जो दीवार एक बन गई थी वो जनता ने उठाया है और मैं वैसे ही कामयाब हुआ. तो मुझे लगता है राइजिंग स्टार का पार्ट बनने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कुछ करने मिल रहा है. आई थिंक बहुत रिलेट कर सकता हूँ इस शो से और उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे कुछ नए राइजिंग स्टार सच में निकले जो मेहनत करते हैं लेकिन जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है. तो जनता के प्यार से सब कुछ पॉसिबल होगा. बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच. राइजिंग स्टार तो मेरा बहुत पुराना नाता है. आई थिंक जब जो फर्स्ट सीजन था तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट एंड ट्रस्ट मी, आई थिंक ये बेस्ट रियलिटी शो है. और मैं सिर्फ हार्डली टीवी देखता हूँ बट ये दो शो ज़रूर देखता हूँ. एक है बिग बॉस और एक है राइजिंग स्टार. मतलब ये दो शो तो देखना ही है बॉस, कुछ भी हो जाए. और प्लस इतना यंग टैलेंट है हमारे पास इंडिया में, कितना टैलेंट है बट वो कहीं ना कहीं हम मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम कंपोजिंग समथिंग तो वो जैसे ही आई थिंक लास्ट ईयर 2-3 कंटेस्टेंट्स हैं जो बहुत सही गा रहे थे बट वो आज पता चलता है जब आप राइजिंग स्टार या ऐसे कोई भी रियलिटी शो में व्हेन यू लुक एट द टैलेंट कि बॉस ये इतना सही गा रहा है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी बैक अगेन ऑन द शो. Thank you so much, Chetas bhai. Thank you for joining us. And I would like to invite Shankar sir, Neeti, Neena, Vipul bhai, everyone on stage for our first photo round. अच्छी बात है जिसके मतलब एक प्राउड फीलिंग आता है कि मतलब कोई ना कोई तो किसी ना किसी को तो पता है कि लाइफ कितना मैटर करता है और उस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है. तो आई थिंक मुझे अच्छा लग रहा है इसका पार्ट. ओके सर, गली बॉय की बात करें तो वो आपसे इंस्पायर्ड है और वो बहुत ही जल्द 200 करोड़ पार करने वाला है. सो क्या कहना चाहेंगे और आप पर्सनली मिले हैं रणवीर सिंह से? जी
तो उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? 200 करोड़ पार करने वाली है बहुत अच्छी बात है कि वो मूवी सक्सेस हुई है और खुशी होती है कि हमारे से इंस्पायर होके मूवी बनी और जो इतना ऊंचाइयों पर जा रही है। तो मुझे लगता है हम सबकी मेहनत रास आई और जो स्टोरी है वो काफ़ी रिलेटेबल है और काफ़ी युद्ध है। तो मुझे लगता है जोया मैम, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और म्यूजिशियंस जो थे, अंकुश तिवारी जो सुपरवाइज किया था और जो अंडरग्राउंड पूरा सीन है, हम सब की मेहनत इकट्ठा करके अगर देखा जाए तो वो रंग लाई, कुछ नया हुआ सीन में, बॉलीवुड के सीन में, म्यूजिक के सीन में। तो इस वजह से लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और मैं खुश हूँ इस बात। पहले आपसे लोग आपके बारे में जी बिल्कुल, उनका आप घर का हिस्सा हो कहीं ना कहीं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है हमारा म्यूज़िक ऐसा था जो काफ़ी यूथ और काफ़ी यंग लड़कों तक, यंग ऑडियंस तक सीमित था, लेकिन गली बॉय के बाद से हमें बहुत सारे लोग सुनने लगे जो माता पिता होते हैं या जो 1-2 जनरेशन ऊपर के लोग भी सुन रहे हैं। जैसे 50-60s वाले आर्टिस्ट मुझे बोलते हैं कि हमारा गाना मुझे समझ आता है। बहुत एक्साइटिंग है, बहुत शॉकिंग है एट द सेम टाइम, लेकिन मज़ा आ रहा है कि सारे लोगों को रिलेट कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी तक हिप हॉप रैप में लोगों को लगता था कि सिर्फ बड़बड़ की जाती है और लिरिक्स कुछ काम की नहीं होती, लेकिन गली बॉय से बहुत सारे लोग एजुकेट हुए हैं, उनको हिप हॉप के बारे में पता चला है कि असली हिप हॉप होता क्या है। और इस वजह से सारी एज बैरियर्स टूट रहे हैं और बहुत सारे रीजनल बैरियर्स भी टूट रहे हैं। हम सिर्फ अब बॉम्बे में नहीं जाना जाता है, पूरे देश भर में जाना जाता है, तो एक खुशी की बात है। और आपको क्या लगता है कि ऐसे जो रियलिटी शोज आते हैं वो टैलेंट को कितना आगे तक लेके जा पाते हैं? मुझे लगता है रियलिटी शोज बहुत ज़रूरी है, हमारे देश में एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो जैसे मुझ जैसा आर्टिस्ट जिसको सिर्फ जनता ने बनाया है, तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मैंने यूट्यूब के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा आगे बढ़ा। लेकिन अगर रियलिटी शोज़ होते हैं जो सच में परवाह करते हैं अप एंड कमिंग आर्टिस्ट को लेकर, उनके बारे में सोचते हैं और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। उससे नए टैलेंट को मौका मिलता है अपनी कला को सब लोगों के सामने लाने का और बहुत फ़ायदेमंद होता है सीन के लिए, नए आर्टिस्ट के लिए। और बहुत उम्मीदें होती है लोगों को कि रियलिटी शोज से कोई सच का कलाकार जो यंग और इंस्पायरिंग है वो लोगों के सामने आ सकते। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट very pretty and a big congratulations. Okay, before you start, there are only 5 questions, so you guys decide. Yeah, because she has to leave by 9 and I have to complete 2 more interviews. Yeah, roll it. So ma'am, it's in 3rd season. कितने excited हैं आप? पहले ये जानना चाहिए. Yeah. Thank you. I'm super excited to be part of Rising Star 3 और मुझे लगता है कि इट्स सच ए यूनिक कॉन्सेप्ट। राइजिंग स्टार में ऐसा शो है जहाँ पर लाइव सिंगिंग होती है और लाइव ऑडियंस उसे सुनती है और उसके लिए वोट करती है। और ये कॉन्सेप्ट और किसी भी शो में मैंने आज तक ना देखा है ना सुना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अ शो जहाँ पर हमारे पद्मश्री शंकर जी हैं और दिलजीत जी हैं, आदित्य नारायण और मैं, हम न्यू हैं इस शो के लिए। और जो कलर्स और ऑप्टिमिस्टिक टीम का हम जो हिस्सा बने हैं, वी आर सुपर हैप्पी एंड हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि जनता का प्यार मिले हमारे सारे सिंगर्स को और उनकी सपनों की दीवार और उड़ जाए और उनके सपनों की उड़ान को सब लोग सराहें। कोई भी रियलिटी शो आता है वो इस जज्बे से आता है कि हम नए टैलेंट को बढ़ावा दें। हम जितने भी नए सिंगर्स हैं जो देश के शायद ऐसे कोने में रह रहे हैं जहाँ पर उनके लिए ऐसा कोई माध्यम नहीं है जहाँ पर वो जाकर एक रिकॉर्डिंग कर सकें या फिर एक ऐसे परफॉर्मेंस दें जो पूरा देश सुन सके। और मुझे लगता है रियलिटी शोज़ में जब वो आकर गाते हैं, यहाँ पर हमारी टीम होती है जो उन्हें सिखाती है, उनके लिए गाना डिसाइड करती है, उनकी वॉइस को और पॉलिश करती है और फिर उन्हें
जनता के सामने, ऑडियंस के सामने, टीवी पर प्रेजेंट किया जाता है, तो ये उनके लिए इतना बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि जब वो वापस जाते हैं तो जो वो 2 साल में सीखते वो 3 महीने में, 4 महीने में सीख कर अपने घर वापस जाते हैं. सो आई फील रियलिटी शो का हिस्सा होने में उनको जो लर्निंग मिलती है, इट्स अमेजिंग. राइट फ्रॉम म्यूज़िक से लेकर लाइफ के बारे में, इमोशंस कैसे अपने कंट्रोल में रखने हैं, टू हाउ टू बी प्रैक्टिकल, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, और किस तरह से आप अपनी जनता से कनेक्ट करें, ये सब आपको सीखने को मिलता है. जी जी जी. लास्ट 2 सीजन्स में मोनाली ठाकुर को आपने देखा है और आई थिंक शी इज़ फैब्युलस और बहुत ही प्यारी सिंगर हैं. मुझे चैनल ने सीज़न 3 के लिए अप्रोच किया और क्योंकि मैं इस शो की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आई कुड नॉट से नो. एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे शो का हिस्सा होना जहाँ पर कुछ यूनिक हो रहा है, जहाँ पर ऐसे टैलेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है जो उसी टाइम लाइव गाएगा और लाइव उसे जनता सुनेगी और उसे सेलेक्ट करेगी, उसे और बढ़ावा देगी. आई थिंक ऐसे शो का हिस्सा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. जी, थैंक यू. कैसे मैनेज करेंगे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? जी, बिकॉज दोनों बहुत ही डिफिकल्ट होता है. जी, मुझे हमेशा लगता था कि शादी करने से शायद मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ मैं उसको टाइम नहीं दे पाऊँगी या शायद बढ़ जाएगा मेरा पर्सनल टाइम और प्रोफेशनल टाइम. पर मुझे एक दिन मेरे पापा ने बोला, उन्होंने बोला यू नो यू आर अ वुमन और ये तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिटी है. Women are born with so much of capacity to be able to play different roles. तुम एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी करियर वुमन हो, एक सिंगर हो, be a wife and be a daughter-in-law and you will say that you fulfill your life. और I think ये बहुत ज़रूरी है हर गर्ल के लिए, हर बॉय के लिए, एक ऐसे स्टेज पर आके एक लाइफ पार्टनर को के साथ ज़िंदगी बिताना और एक नया रोल आप लाइफ में लेते हैं. जैसे कि एक मैंने नया रोल लिया है एज एन एक्सपर्ट ऑन राइजिंग स्टार, मैंने एक दूसरा रोल एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ अब ले रही हूँ. सो सुपर एक्साइटेड टू प्ले ऑल द रोल्स. जी हाँ जी 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 जी. सच बात बोलूँ तो जब हम दिल्ली में रहते थे और हम चारों बहनें सिर्फ सपने सर आ जाइए इधर. हम दिल्ली से हैं और जब हम दिल्ली में बैठ के टीवी देखते थे या कोई गाना सुनते थे या फिल्म्स देखते थे, तब हम बस ये सोचते थे कि वाओ इट मस्ट बी सो अमेजिंग कि कोई आर्टिस्ट है और उसको अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाने का मौका मिला है. सो वाओ दैट पर्सन इज़ सो लकी. और मुझे लगता है कि थैंक्स टू रियलिटी शोज़ कि हम मोहन सिस्टर्स को ये मौका मिला कि शक्ति ने एक डांस रियलिटी शो जीता, मैंने म्यूज़िक रियलिटी शो जीता, मुक्ति ने एक डांस रियलिटी शो जीता और हम सब मुंबई शिफ्ट हुए और अपना करियर शुरू किया. सो और उसके बाद आई थिंक हमें जनता का बहुत प्यार मिला है कि एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट से, प्लेबैक सिंगर से आज एक जज बनना और लोगों को इंस्पायर करने का मौका मिल रहा है राइजिंग स्टार पर. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. और शक्ति भी वही कर रही है ऑन हर डांस शो. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट यू ऑल गिव अस एंड हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम करें और आप लोगों को एंटरटेन करते रहें. थैंक यू सो मच. Tell me when you're ready. नमस्कार, मैं हूं शंकर महादेवन और जैसे आप ये पोस्टर में देख रहे हैं, मैं राइजिंग स्टार सीज़न 3 में फिर से एक मेंटोर हूं और ये सीज़न बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि जैसे पहले 2 सीज़न एक सुपर हिट वन ऑफ इट्स काइंड शो रहा है, वैसे ही ये सीज़न जहाँ पर सीज़न 2 ख़त्म हुआ था
म्यूज़िकलिटी और म्यूज़िकल लेवल के तौर से वहाँ पर ये शुरू होने वाला है, मैं यकीन से बता सकता हूँ। ये शो इसके लिए स्पेशल है क्योंकि अगर आप टेलीविज़न के वर्ल्ड में आप कोई भी शो देखें, आप कोई भी म्यूज़िक शो देखिए, वो लाइव नहीं होता है। दिस इज़ द ओनली शो दैट इज़ 100% लाइव। ये शो शुरू होता है रात को 9 बजे और 10:15 साढ़े 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है और हम लोग शूटिंग सिर्फ वो 1.5 घंटे के लिए करते हैं। उस 1.5 घंटे में ये पूरा शो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये कैसे होता है? इट कैन ओनली हैपन बिकॉज ऑफ 2 absolutely fabulous teams. One is the colors team and one is the optimistics team. ये दोनों का जो जोड़ी है ये बहुत ही खतरनाक जोड़ी है बिकॉज ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है अभी तक। 2 साल से मैं कर रहा हूँ ये कि 1.5 घंटे के अंदर एंकर कभी अंदर आएगा, कभी बाहर जाएगा, कंटेस्टेंट्स कभी जाएगा, कभी बाहर जाएगा, दीवार कब उठेगी, कब नीचे जाएगी, ऑपरेट करना चाहिए, करेक्ट ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद लाइटिंग, कैमरा वर्क, जजेस के कमेंट्स, प्रॉपर्टीज, ग्राफिक्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रिसाइज। आपको मिस्टेक करने का मौका है ही नहीं। दैट इज़ द प्रिसिशन ऑफ द शो। एंड दिस 1.5 आवर्स के शो के लिए ये जो टीम्स हैं ये पूरे हफ्ते प्लानिंग करते हैं। इट्स एन अमेजिंगली प्लान्ड शो। एवरी सिंगल सेकेंड इज प्लान्ड। जब ऐसा प्लानिंग करेंगे तो ही ये शो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो बहुत बहुत बधाई फॉर राइजिंग स्टार 3 एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। राइजिंग स्टार में फ्लेवर के बिना तो मज़ा आएगा ही नहीं है। इसमें जैसे ये शो का एक स्पेशलिटी ऐसा है कि एज लिमिट ही नहीं है। इसमें एक छोटा सा बच्चा है फ्रॉम द इंटीरियर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और एक 72 ईयर ओल्ड लेडी इज़ देयर जो पार्टिसिपेंट है। तो देखिए अंतर देखिए। तो इस तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ सिंगर्स हैं, वेरियस जॉनर्स हैं, वेरियस उनके कैरेक्टर्स हैं जो हमारे समाज के डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करेंगे और जनता का प्यार इनको मिलेगा और उनका भी लाइफ में जो दीवार है वो उठने का स्कोप है। देखिए दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द शो कि अगर आप अपने परफॉर्मेंस के द्वारा अगर आप अभी आप ये 72 ईयर ओल्ड लेडी जब परफॉर्म करेगी आप विश्वास कर सकते हो कि कितने ऐसे लेडीज़ होंगे जिनके दिल में ये अरमान होगा कि यार कभी ना कभी मैं गाना गाना चाहिए, कभी ना कभी मुझे परफॉर्मेंस का चांस मिलना चाहिए। क्या कभी उम्मीदें ख़त्म हो गई होगी किसी को तो उम्मीदें फिर से जाग उठेंगी, बोलेंगे कि यार आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी मे बी आई कैन ऑल्सो कम एंड परफॉर्म ऑन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लाइक दिस। सो इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंस्पायरिंग। लास्ट सीजन में एक लेडी थी जो पोस्ट वुमन थी, सिंधु ताई को ये प्लेटफॉर्म मिला और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, उस स्ट्रैटा के, उस एज ग्रुप के कितने लेडीज इंस्पायर हो गए हैं एंड दे गॉट कॉन्फिडेंस अगेन टू गेट हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इन देयर लाइव्स। थैंक यू वेरी मच। देखिए मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना बड़ा एक पद्मश्री के टाइटल से नवाजा जाएगा। तो आई रियली थैंक गॉड एंड थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिकग्नाइजिंग कि मैंने 20-25 साल में जो काम किया है। क्योंकि ये जो अवार्ड है जब आप राष्ट्रपति भवन जाते हैं वहाँ पर जब वो सम्मान मिलता है तभी आपको समझ में आता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। क्योंकि हम लोग अवार्ड फंक्शंस जाते रहते हैं, अवार्ड लेते रहते हैं, वो ठीक है, वो एक पर्टिकुलर गाने के लिए है,
या एक पर्टिकुलर फिल्म का म्यूज़िक दिया है उसके लिए है, या आपने एक किरदार निभाया उसके लिए है। लेकिन पद्मश्री का जो टाइटल है, दिस इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अ पर्सन कैन गेट इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन। और ये आपका जो ज़िंदगी में आपने जो काम किया है उस काम के लिए है, और उसके लिए है कि आपने सोसाइटी को किस तरह से अपने काम से इन्फ्लुएंस किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इज सिटिंग, ऑल द ग्रेट डिग्निटरीज आर सिटिंग, और आपको वो मेडल पहना जाता है, तो यू रियलाइज दैट यू नो यू आर एन ऑनरेबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और उसी के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि यू नो येस आई शुड कम आउट विद बेटर म्यूजिक दैट्स गॉट एस्थेटिक्स, डेप्थ एंड समथिंग दैट अपने देश का संगीत को हम लोग विश्व में फैलाएंगे। Who? I'm really going to miss Monali, but you know, this is how television works. This is how shows work. People keep coming, people keep going. I'm sure Monali is doing fabulously well in another show somewhere else in some other channel. I wish her all the very best. She was a darling. But I know Neeti Mohan for so many years. कितने साल से मैं जानता हूँ, हम एक शो करते थे अमूल म्यूजिक का महामुकाबला 15 साल। हाँ, फिर से कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए मुझे। अरे थैंक यू। अरे अभी सवाल पूछ रहे खाली। हाँ। अरे थैंक यू सो मच भाई, ये तो मैंने सुना ही नहीं। ले थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक बिल्कुल ही अलग फॉर्मेट है। आई थिंक ये इकलौता लाइव सिंगिंग रियलिटी शो है इंडियन टेलीविज़न पे, और सिंगिंग रियलिटी शोज़ मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही अलग अनुभव होगा। साथ ही साथ शंकर सर हैं, नीति हैं, दिलजीत भाई हैं, यू नो दे आर ऑल सुपरस्टार्स। शंकर सर तो लेजेंड ही हैं, और अभी उन्हें पद्मश्री मिला है, और आई थिंक दे आर ऑल वेरी इंस्पायरिंग। नीति जो खुद हैं इतनी बड़ी सुपरस्टार बनी है म्यूज़िक इंडस्ट्री की, वो खुद एक रियलिटी शो से आई हैं, तो वो एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि वो हमारे सिंगर्स के लिए, कंटेस्टेंट्स के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने वो जर्नी तय की है एज ए कंटेस्टेंट टू आज वो इतने बड़े शो पे जज बन चुकी हैं। और दिलजीत भाई जो हैं ही सुपरस्टार हैं, पहले पंजाब के सुपरस्टार थे, अब इंडिया के सुपरस्टार बन गए हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं साथ ही साथ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा एक माहौल बन रहा है, बहुत अच्छा वातावरण है, और मुझे लगता है कि माहौल अच्छा होता है तो शो अच्छा होता है, और जब शो अच्छा होता है तो लोगों को पसंद आता है, और फिर लोगों को पसंद आता है तो टीआरपी आती है। सर, इसके पहले आपने बहुत से रियलिटी शो होस्ट किए हैं। जी, ये फर्स्ट टाइम होगा कि आप लाइव होस्टिंग करने वाले हैं, और लाइव में हमने ये देखा कि होस्ट के ऊपर ही पूरे दामोदर आ जाता है, क्योंकि 1 मिनट का जो स्लॉट रहेगा उन्हें पूरा एंटरटेन करना पड़ता है। बिल्कुल। तो कितना प्रेशर है, तो कितना बर्डन रहेगा? बहुत प्रेशर होता है भाई। फंबल मारा तो सीधा घर पे पहुंच जाता है फंबल, ये नहीं कि कट जाएगा। लेकिन शंकर सर ने वहाँ पे प्रोमेनाड पे बहुत अच्छी बात बोली कि ये एक स्पोर्ट्स इवेंट की तरह होता है, जहाँ पे 2 घंटे एकदम T20 मैच की तरह सब अपना बेस्ट देते हैं, हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश होती है। चैलेंजिंग तो है डेफिनेटली, क्योंकि जनरली अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें प्री प्रोडक्शन होता है, फिर प्रोडक्शन होता है, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे कोई पोस्ट प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे जो है, जो तैयारी करनी है पहले से कर लो, उसके बाद एक बार आप मैदान में उतर गए तो बस फिर अपना बेस्ट देना है। बट इतनी अच्छी टीम है, यू नो, कलर्स की बहुत अच्छी टीम है, ऑप्टिमिस्टिक्स की बहुत अच्छी टीम है। इनफैक्ट कलर्स के साथ ये मेरा लगातार 4था शो है। एंटरटेनमेंट की रात हमने किया, फिर खतरों के खिलाड़ी किया, खतरा भी हमारा चल रहा है, अब राइजिंग स्टार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी हमारी ट्यूनिंग जम गई है। और सबसे अच्छी बात है कि अलग अलग चीज़ें करने को मिल रही है मुझे। एक एंटरटेनमेंट वाला शो था, एक स्टंट्स वाला शो था, एक प्रैंक वाला शो था, अब ये म्यूज़िक शो है, तो यू नो अपने सारे पहलू मुझे दिखाने का मौका मिल रहा है लोगों को। पता नहीं सर, अभी एक्टिंग करके टाइम हो गया, 10 साल हो गए, याद नहीं मुझे। नहीं देखिए क्या है, एक मंडे टू फ्राइडे है और एक वीकेंड है,
तो बेसिकली पूरे हफ्ते मैं आपको कलर्स पे दिखूंगा, मंडे से लेके मंडे टू फ्राइडे खतरा 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 में, सैटरडे संडे राइजिंग में। और हाँ, अच्छी बात है सर, दोनों शो साथ में चल रहे हैं, दुकान अच्छी चल रही है, पर डे अच्छा आ रहा है। बट उससे भी ज़्यादा क्या है ना कि मज़ा आ रहा है। दोनों शोज़ बहुत अलग है और साथ ही साथ एक अपने ही वे में चैलेंजिंग है। यू नो, कॉमेडी भी एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ होती है, लोगों को हंसाना बहुत आसान काम नहीं है। और साथ ही साथ ये जो म्यूज़िक शो है और उसका तीसरा सीज़न है, पिछले 2 सीज़न्स काफ़ी सफल रहे हैं, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस सीज़न को भी सफल बनाएं और पिछले दोनों सीज़न से और भी ज़्यादा सफल बनाएं और भी ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो वो कॉमेडी यहाँ भी देखने मिलेगी आपकी, क्योंकि वो जो हाँ जी बिल्कुल, देखिए कॉमेडी क्या है, वो मेरी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, तो मैं जहाँ पे भी जाऊँगा वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ओके सर, 9 बजे के स्लॉट जो इसके पहले खतरों के खिलाड़ी था, इसके आप फर्स्ट रनर अप रह चुके हैं। जी, थैंक यू। दिल भी टूट गया कि आप नहीं जीते। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपका क्या है, कैसा लगा आपको लास्ट मोमेंट में आकर आपने ट्रॉफी नहीं जीती? अभी देखिए क्या है कि एक कंपटीशन है और कंपटीशन में किसी को फर्स्ट आना है, किसी को सेकंड आना है, किसी को थर्ड आना है। अगर आप स्पोर्ट्स की भी बात करें तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है और ब्रॉन्ज मेडल होता है। तो और हर स्पोर्ट्समैन के टाइमिंग के बीच में कुछ सेकंड्स का या मिली सेकंड्स का फासला होता है, तो उसे बिल्कुल भी आपको आई थिंक हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं खतरों के खिलाड़ी जैसे शो का फर्स्ट रनर अप बना, एक कदम दूर रह गया ट्रॉफी से, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ये ट्रॉफी पुनीत को गया। वो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को भी पूछें तो उनके टॉप 2 कंटेस्टेंट्स में मेरा और पुनीत का नाम डेफिनेटली आएगा। ऑफ कोर्स इतनी दूर आए हैं तो जीतना तो अच्छा लगता है, प्लस एक अच्छी गाड़ी भी मिलती है। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, लोगों का इतना प्यार मिला और आई थिंक एक अलग फ़ैन बेस खतरों के खिलाड़ी की वजह से मुझे मिला है, क्योंकि एक ऐसा पहलू आपको देखने को मिला जो आपने पहले कभी नहीं देखा। तो लोगों को ये लगा कि अरे वाह, आदित्य ये भी कर सकता है, और मैंने अपना बेस्ट दिया और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ मुझे कलर्स के 2 और शो मिल गए, तो प्राइज़ मनी से ज़्यादा प्राइज़ मनी मुझे मिल चुका है, तो विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। थैंक यू भाई।